जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू देश दुनिया। देश दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का यूएनजीए स्पीच एंड उसको डिस्कस करेंगे उन्होंने इंडिया के बारे में क्या कहा और क्यों वो 100% गलत है। चलिए पहले स्टार्ट करने के पहले इनका एक स्पीच देख लेते हैं, फिर हम लोग इसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। Last year, from this very podium, I had warned that Pakistan would act and act most decisively against any external aggression. Those words of mine proved true. I hope it didn't. But then that is destiny. When in May this year, my country confronted unprovoked aggression from our eastern front, the enemy came shrouded in arrogance. We sent them back in humiliation, delivering our bloody nose. Excellencies, India sought to extract political gains from a human tragedy by spurning my sincere offer of an independent international investigation into the Pahalgam incident. Instead, it attacked our cities and targeted our innocent civilians. When our territorial integrity and national security were violated, our response was in accordance with the right of self defense under Article 51 of United Nations Charter. Our valiant armed forces, under the stellar leadership of Field Marshal Syed Asam Munir, mounted an operation of stunning professionalism, bravery, and acumen, repulsing the enemy's attack under Air Chief Marshal Zahir Babar Sidhu. Our falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. A decisive response. Marsus, Excellencies, though in a position of strength, Pakistan agreed to a ceasefire facilitated by President Donald Trump's bold and visionary leadership. We express our deep appreciation to him and his team for their active role in bringing about the ceasefire. President Trump's efforts for peace helped avert a more threatening war in South Asia. Had it had he not intervened timely and decisively, the consequences of a full fledged war would have been catastrophic. Who would have lived to tell what happened? And therefore, in recognition of President Trump's wonderful and outstanding contribution to promote peace in our part of the world, Pakistan nominated him for Nobel Peace Prize. And I think this is the least we could do for his love for peace. And I think truly he's a man of peace. चलिए दोस्तों, पाकिस्तान पीएम की बकवास तो आपने सुन ली। अब थोड़ा सा मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं और क्रिटिकल एनालाइज करते हैं उनके बकवास को। सो मेजर फॉल्स क्लेम्स क्या था उनके स्पीच में? मेजर था वॉर विक्ट्री ओवर इंडिया। उन्होंने कहा दैट दे हैव वॉन द वॉर एंड सीक टू विन द पीस। पाकिस्तान डिलीवर्ड ब्लडी नोज टू इंडिया। ये सरासर झूठ है। उन्होंने जो मई 2025 कॉन्फ्लिक्ट का जो बोल रहे हैं कि वो जीत गए हैं, एक्चुअल में उनकी हार हुई थी। अलीग्स पाकिस्तानी फोर्सेस शोड स्टनिंग प्रोफेशनलिज्म, ये भी झूठ है। उनका आसिफ मौली बंकर में छिप के बैठ गया था। बूस्ट अबाउट ह्यूमिलेटिंग इंडियन मिलिट्री, ये भी गलत है। और ट्रम्प को क्रेडिट दिया कि उन्होंने वार रुकवाया, जबकि इंडिया के साइड से ये बोला गया है कि पाकिस्तान के फोर्स ने उनको कॉल किया था और बोला था वार रोकने के लिए।
सेकंड, इंडियाज अनप्रोवोक्ड अग्रेशन। वो कह रहे हैं कि इंडिया अग्रेसर है, जबकि हम लोग सब जानते हैं कि पहले पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद ही ये हमारा जवाब है। उन्होंने इंडिया को पोर्ट्रे करना चाहा एज अ एग्रेसर, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि इंडिया इंगेज इन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये भी सरासर गलत है। वो कहते हैं इंडिया ऑर्केस्ट्रेटेड फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और डिमांड कश्मीर एज ऑक्यूपाइड टेरिटरी, सारे के सारे गलत। कश्मीर का एक ही इशू है कि हमको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लेना है, और बस कश्मीर इशू सॉल्व हो जाएगा। तो शरीफ ने कहा वी आर डिफीटिंग द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कैरिड आउट बाय इंडिया। झूठ झूठ झूठ। अब रियलिटी चेक पे आते हैं। हमारे 45 टूरिस्ट मर गए थे पहलगाम अटैक में, जो कि 4 दिन की कॉन्फ्लिक्ट थी, और पाकिस्तान ने टेरर अटैक किया था। द ट्रूथ अबाउट 2025 में हम इसको डिस्कस करते हैं। एक्चुअल सीक्वेंस क्या हुआ था? पाकिस्तान बैक टेररिस्ट ने 45 टूरिस्ट को पहलगाम में मारा था। फिर इंडिया ने प्रोपोर्शनल रिटेलिटरी स्ट्राइक्स किए टेररिस्ट स्पॉट्स पे। फिर पाकिस्तान क्लेम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन विदाउट एविडेंस। इंटरनेशनल प्रेशर लीड टू सीज फायर और नो डिसाइसिव मिलिट्री विक्ट्री फ्रॉम आइदर साइड। लेकिन हम इंडिया ने अपना ऑब्जेक्टिव को क्लियर किया, अचीव किया। उन्होंने सारे टेररिस्ट एक्टिविटी जहाँ से होती थी उनको डिस्ट्रॉय किया, और उनका एयरपोर्ट्स वगैरह को भी धराशायी किया है। पाकिस्तान का प्रोपोगंडा। पीएम शहबाज शरीफ admits defeats went viral. Pakistani military call Indian claims illusion. Massive social media disinformation and no evidence of Pakistan military superiority. ये सबको पता है दोस्तों, इसके बारे में कुछ डिस्कस करना ही नहीं है। फॉल्स टेररिज्म एक्विजिशन। पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान शील्ड्स टेररिस्ट एट यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल। ये एक फैक्ट है। पाकिस्तान टेरर रिकॉर्ड। उन्होंने रजिस्टर फ्रंट बनाया टेरर आउटफिट को, और उसको यूएनएससी में शील्ड किया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनने से। प्रोटेक्टेड पेरिपेटिस ऑफ पहलगाम मैसेकर, और लॉन्ग हिस्ट्री है उनका क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में। यहाँ तक कि ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में ही मिला था, और डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप्स पाकिस्तान में फल फूल रहे हैं। इंडियाज रिस्पॉन्स टू टेरर। हम लोगों ने प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स दिया टेररिस्ट अटैक को। हम लोगों ने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को ही टारगेट किया है। हम लोग इंटरनेशनली रिकग्नाइज है सेल्फ डिफेंस के लिए। हम लोगों ने पास्ट में भी सर्जिकल स्ट्राइक्स की है और आगे भी करते रहेंगे। एंड डिफेंस इज नॉट एन एग्रेशन। अब इंटरनेशनल रिस्पॉन्सेस एंड क्रेडिबिलिटी क्राइसिस। देखिए, ग्लोबल मीडिया क्या कहती है? डिस्क्राइब स्पीच एज बेलिजेंट एंड फ्रीक्वेंटली फॉल्स। इंडियन रिस्पॉन्स क्या था? कॉल इट एब्सर्ब्स थियोरेटिक्स एंड ग्लोरीफाइंग टेररिज्म। फैक्ट चेकर्स क्या बोला? डिबंक मेजर क्लेम्स अबाउट कॉन्फ्लिक्ट आउटकम्स। और यूएन प्लेटफॉर्म मिसयूज तो पाकिस्तान करता ही रहता है, यूजिंग ग्लोबल फोरम फॉर बायलैटरल प्रोपोगंडा। क्यों ये क्लेम्स फॉल्स है? क्योंकि कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है पाकिस्तान की जीत का। कॉन्फ्लिक्ट इंडिया ने जीता है क्योंकि उसने अपना मिलिट्री ऑब्जेक्टिव को लिया है। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो स्टेलमेट पोजीशन है, पाकिस्तान की कहीं से जीत नहीं हुई है। Pakistan initiated aggression through terrorism. Our international community supports India's self-defense. Pakistan terrorism record undermines credibility. Our pattern of Pakistani propaganda, historic pattern है. It consistently uses international forums to spread false narratives about India while simultaneously harming, targeting and engaging in proxy warfare. कंक्लूजन ये है कि पाकिस्तान बकवास कर रहा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उनका फॉल्स क्लेम्स है। डोमेस्टिक ऑडियंस को प्रोपोगंडा वो लोग करते हैं दिखाने के लिए कि उन्होंने यूनाइटेड नेशन में जाके कुछ बोला है। इंटरनल टेररिज्म इशू से डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। अटेम्प्ट करते हैं इंटरनेशनलाइज करे बायलैटरल इशू, स्पेशली कश्मीर को। अपना मिलिट्री और डिप्लोमेटिक फेलियर को कवर करते हैं, और फॉल्स नैरेटिव ऑफ विक्टिमाइजेशन पाकिस्तान हमेशा से करता आया है। रीजनल स्टेबिलिटी का क्या इम्पैक्ट है? इट अंडरमाइंस जेन्युइन पीस डायलॉग प्रॉस्पेक्ट्स। मिस इन्फॉर्मेशन होती है ग्लोबल
प्लेटफॉर्म पे, इम्बोल्डन्स टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और डैमेज करता है यूनाइटेड नेशन क्रेडिबिलिटी को, ऑल्सो परपेचुएट्स रीजनल टेंशन अननेसेसरी। तो उनका विक्ट्री क्लेम तो फॉल्स है। एग्रेशन एलिगेशंस को हम लोगों ने डिबंक कर दिया, और ये प्रोपोगंडा जो पाकिस्तान करता है उसको भी हम लोगों ने कवर करने पे का कोशिश किया है। अब मेरा फाइनल असेसमेंट यही है, पाकिस्तान पीएम यूएन स्पीच रिप्रेजेंट्स अ सिस्टमैटिक disinformation campaign that uses United Nations platform for bilateral propaganda, spread false narrative about May 2025 conflict, and undermines genuine peace effort and simultaneously shielding terrorists and engaging in proxy warfare against India। वीडियो के देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।